Good morning. My name is Pranay, and as a consultant, as a trainer, a lot of people ask me, how do you handle change around you? And trust you me, मुझे लगभग 2.5 decades का experience है. And from where I look at life, unless आप अपनी life को front foot पे खेलें, you will not be able to encounter the complicated questions of life. Similar is your workspace. You got to realize that whatever change you are driving, if you are in a Lean Six Sigma role, you are looking at making improvements. If you are a technology professional looking at doing technology enablement, if you are in a project manager role looking at driving a newer project, you got to realize that हर आदमी अपनी लाइफ में अपने कंफर्ट जोन में बैठा है. I'm used to doing things in a particular way. I'm used to doing life in a particular way. Now you are stepping into my system and expecting that I modify the way I operate. I modify the way I'm leading my life. You gotta realize कि एक बहुत important question है जो आपको हर बार handle करना पड़ेगा when you are looking at change, which is the question of what is in it for me. मेरा क्या फायदा? Everyone knowingly या unknowingly इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा है. And if you are looking at walking that extra mile to be able to convince the person about what is in it for me, I am more likely to be part of your success story. Otherwise, I'm going to be working as a hindrance. Let me talk to you from a Lean Six Sigma perspective. When I'm looking at a Lean Six Sigma improvement consultant or a project management consultant, you got to realize that I will need a lot of buy-in from the top management. So success के लिए top management का top management का involvement is a very, very critical success factor. And unless you get the top management to participate, and unless they put their weight behind you, बहुत likely है that आपका project, आपका improvement, आपका digital enablement will not be successful. So आपको तरीके ढूंढने होंगे to identify top management के इस question का आंसर. I'll start with my own story. About a decade plus ago, I was part of an organization और client के तरफ से एक बहुत बड़ा compliance का काम हमारे सर पे आ गया. Suddenly, out of the blue, हमारी organization में 965 new control points needed to be implemented. This involved information security. This involved a lot of contractual compliance, etc., etc. When I came back to my company, you got to realize that during the initial conversation with my CEO, he immediately understood that इस 965 के चक्कर में बहुत सारा पैसा लगने वाला है. CEO का सवाल, मैं ये 965 controls implement करवाने में क्यों अपने पैसे खर्च करूं? What is in it for me? Answer was very simple. $600 million का contract promise था customer की तरफ से. If you were to become a global development center, a $600 million business was guaranteed to you from the customer. उनके इस question का answer was the money. कोई डिलीवरी लीडर था, कोई डेवलपर था, मेरी खुद की टीम थी. Just because the CEO is convinced
just because he has decided to put his weight behind you will not make you successful. जीतने के लिए बहुत जरूरी है कि सारे स्टेक होल्डर्स को आप ये स्टोरी सेल करें और सबका एक ही सवाल, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरा क्या फायदा। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप देना शुरू करेंगे, दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट प्लान. Selling is a very important success factor when it gets to change management. You got to realize that success for the engagement will happen when all stakeholders are to be convinced. किसी को convince करने के लिए growth story sell करनी पड़ेगी. किसी को skill, किसी को reward. Please, you got to understand, when you are looking at driving success across your engagements, बहुत important है कि आप stakeholder और उनके associated challenges को समझें and you answer that question of how will that benefit me. If I'm looking at a Lean Six Sigma project, अक्सर जो challenges आते हैं, you will not get participation from leadership. Sometimes availability of data will be a problem. Sometimes data validity. Improvement के लिए funding. Those are definitive questions that will come about when you are driving a Lean Six Sigma project. Question same है, मेरा क्या फायदा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक इंप्रूवमेंट कंसल्टेंट के रूप में यू मस्ट नॉट एक्ट लाइक अ रॉकेट एक्सपर्ट दैट यू विल बी द वन ड्राइविंग द इंप्रूवमेंट. आपको प्रोसेस ओनर को उतना इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा. Process owner should be the owner of the project. That way, if the project is to be successful, he will get the mileage. अगर वो जो प्रोसेस को ओन करता है वो आपके प्रोजेक्ट का पार्टिसिपेंट होगा तो योर प्रोजेक्ट इज मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल. और टॉप मैनेजमेंट के लिए तो एक ही बात है, मुला, talk to them about money. In one of my recent engagements, when the engagement started, the client team came back to us with a list of 26 greenbelt projects that they wanted to do. When we started to convert this into the dollar benefit, we saw that 180 crore का benefit is what we are looking at from the engagements. Very tentative calculations. But because this amount is humongous for the size of the company it is, this immediately caught the attention of the organizational chairman. He set up a meeting with me to say that प्रणय मैं क्या करूं जिससे ये नंबर अपन रिसीव कर पाए. हमने उनके साथ लगभग 5 असाइनमेंट्स किए हैं. हर असाइनमेंट में चेयरमैन का ब्लेसिंग, चेयरमैन का पार्टिसिपेशन ensured that we were very successful in the entire Lean Six Sigma journey. हर एक्सरसाइज के पहले चेयरमैन इन्वॉल्व होते थे, स्पॉन्सर के साथ मीटिंग में चेयरमैन इन्वॉल्व होते थे, प्रोजेक्ट रिव्यूज में चेयरमैन इन्वॉल्व होते थे, सीईओ इन्वॉल्व होने लगे डे टू डे प्रोजेक्ट स्टेटस रिव्यू मीटिंग में. आउटकम दैट एवरीवन स्टार्टेड टू पार्टिसिपेट. 2 आंसर्स. प्रोसेस ओनर को प्रोजेक्ट का ओनर बना दो
और टॉप मैनेजमेंट को पैसे दिखा दो, और कोई तरीका नहीं होता है। I quote this story अक्सर in my own conversations. One of my previous firms, like every organization in the world, वहाँ भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड चेक्स होते थे। बिकॉज मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं उनकी एक साइडी से फालतू से ऑफिस में बैठा रहता था, क्योंकि मैं उनके मेन साइट पे, जहाँ वो अपने मेन क्लाइंट का काम करते थे, वहाँ पर मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुए बिना मुझे एक्सेस कार्ड वहाँ का इशू नहीं हो सकता था। So let's now convert this into money. So on an average हर साल अपन 4,000 एम्प्लॉयज हायर करते थे। 80% एम्प्लॉयज का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन लेट होता था, so let's call it 8 by 10. डिले का एवरेज was about 15 days. जो भी हायर हो रहे हैं एम्प्लॉयज, they will work at a rate of $20 I'm calling it 80 rupees per dollar. हर एम्प्लॉय 8 घंटे काम करेगा कंपनी में। So this is the kind of money, straightforward, जो अपने को नुकसान हो रहा है। So 4,000 times 0.8 times 15 times 20 times 80 times 8 equals 61 6144 6144 followed by 10 to the power of 5. मतलब 61 crore rupees is being lost every year only because of क्या गड़बड़ कर रहे हो आप? बैकग्राउंड वेरिफिकेशन टाइम पे नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से कितना नुकसान हो? 60 करोड़ का। और अभी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं कैलकुलेट किया। सो इन 4,000 लोगों को जो 15 दिन की सैलरी अपन फ्री में दे रहे हैं, तो अगर एवरेज एक बच्चे की सैलरी 50,000 रुपए भी है, तो अपन 25,000 रुपया फ्री में हर एम्प्लॉय को दे रहे हैं। क्योंकि जब तक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, तब तक वो बिलिंग काम नहीं कर सकता है। तुमको दुश्मन की जरूरत नहीं है। तुम वो कौन था, महिषासुर नहीं, भस्मासुर, तुम सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में लाइफ खेल रहे हो। और अगर आप ऐसा मैच दिखाएंगे तो कोई भी आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव करेगा। इनफैक्ट जब तक मैं वो सीक्रेट जोन से अपने सीट पे नहीं पहुंचा, तब तक मेरे सीईओ ने बहुत गंदे गंदे ईमेल्स एचआर लीडर्स और बाकी लीडर्स को भेज दिया कि कमीनो सोए हुए हो, यहां देखो 60 करोड़ का छेद है। लीडर को एक ही भाषा समझ में आती है, पैसे। You should not try and convince a leader without talking to them about money. Luckily, I'm helping an organization on rejections. बहुत ज़्यादा, let's not call it rejection. Let's call it complaint first. So अपन अपना माल उठाते हैं, डीलर के पास भेजते हैं, डीलर फिर एंड यूजर को बेचता है। डीलर के पास बहुत सारा कंप्लेंट है, और हमने कंप्लेंट्स मैनेजमेंट प्रोसेस को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि डीलर भी परेशान हो गया। I started to correlate complaint and repeat orders. जो लोग नाराज थे, वो लोग आपके साथ दोबारा धंधा करने में डर रहे हैं। जो लोग आपसे नाराज हैं, वो आपके साथ दोबारा धंधा करने में डर रहे हैं। आउटकम, ये सडनली करोड़ प्लस का प्रोजेक्ट हो गया। सब लोग ध्यान देने लगे। नहीं तो कल तक जो कंप्लेंट हैंडलिंग टीम थी, क्वालिटी वाला एक यूनिट था जो कंप्लेंट्स हैंडल करता था, जिनकी कंप्लेंट्स की ओनरशिप थी, उस पे वो वजन नहीं आ रहा था। द सीईओ वाजंट गेटिंग इन्वॉल्व्ड एज मच एज दे वांटेड।
बिकॉज सेल्स इन्वॉल्व हो गया, रिपीट ऑर्डर्स इन्वॉल्व हो गए, उसकी वजह से तो लीडर को तो कन्विंस करने का इकलौता उपाय इज पीसे, या अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के सिक्स सिग्मा प्रोफेशनल नहीं है, अगर आप किसी लाइन ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, वहां प्रोजेक्ट्स देखिए मार्जिन का, या उस लाइन ऑफ बिजनेस में जो एसएलएज हैं, क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हमने सर्विस लेवल एग्रीमेंट सेट किए होंगे। अगर एसएलए में कुछ गड़बड़ है तो प्रोजेक्ट करिए, बिकॉज इससे टॉप मैनेजमेंट का विजिबिलिटी खराब होता है। गुड प्रोजेक्ट्स टू डू, और ऐसे प्रोजेक्ट्स उठाइएगा तो यू आर मोर लाइकली टू गेट द टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट। Next set of challenges that will come about when you are looking at doing a Six Sigma kind of a project will be around availability of data, validity of the available data, etc. Availability of data, and sometimes delays associated with that availability is largely, if you were to do a root cause for this, either it is because of non-availability, comprehension issue, bandwidth issue. Let me explain, sorry for this. एक तो कितनी बार ऐसा होता है कि जो डेटा हम मांग रहे हैं वो है ही नहीं, स्पेशली इफ यू आर इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। लॉट ऑफ टाइम यू विल कम अक्रॉस अ चैलेंज कि वो डेटा जो आपको फैक्टर का डेटा चाहिए था, वो डेटा अपन आज कैप्चर ही नहीं करते हैं। क्या करें? नया डेटा कलेक्शन का मैकेनिज्म सेट करो। कितनी बार जो आपने मांगा मैं उसको ट्रांसलेट ही नहीं कर पा रहा हूं, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा हूं। लाइक इन माय प्रीवियस एग्जांपल, कंप्लेन को रिपीट बिजनेस से वो जोड़ ही नहीं पा रहे थे। आर यू विथ मी? कि मैं ये कह रहा हूं कि जो डीलर कंप्लेंट्स कर रहा है, जो जहां से कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिन डीलर्स के पास से, आई एम सेइंग मुझे इनका रिपीट बिजनेस का डेटा दे दो। मे बी द लिंगो कुड हैव बीन कि मुझे उनका सेल्स का डेटा दे दो। कॉम्प्रिहेंशन लॉट ऑफ टाइम could be a big reason why you do not get things on time. Make it simple, make life simple for people you want to work for you. और एक चैलेंज तो हमेशा रहेगा, हमारे पास बैंडविड्थ इशू हो ना हो, हम इंडियंस हैं, हम कन्विंस्ड हैं, हमारे पास बहुत काम है। सो टू बी एबल टू टेक आउट टाइम फॉर योर टास्क रिक्वायर्स ईदर टॉप मैनेजमेंट की तरफ से पुश, या मेरा उतना माइलेज क्रिएट होगा इफ आई वर टू बी एबल टू स्पेयर टाइम अकॉर्डिंगली, या आप अपने प्रोजेक्ट प्लान में ही वो टाइम को एलोकेट करो। अदरवाइज पीपल विल एक्चुअली फाइंड इट डिफिकल्ट कि वो अपने रूटीन टास्क से टाइम निकालें आपके लिए डेटा इकट्ठा करने में, एंड स्पेशली इफ सच डेटा रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ ऑथराइजेशन, सम सॉर्ट ऑफ एनालिसिस बिफोर इट कैन बी सेंट टू यू। तो बैंडविड्थ इशू को तो हैंडल करने के लिए अ गुड प्रोजेक्ट प्लान विल बी हेल्पफुल। मे बी इफ आई वर यू आई विल गेट माई हैंड्स डर्टी। मैं तो बोलूं मुझे सोर्स दिखा दे, मैं खुद बना लूंगा। उनके लीडर से बात करके उनके लिए बैंडविड्थ क्रिएट करवा लो। Borrow that resource for a few days if that's possible, so that the person can dedicatedly work on your particular assignment instead of him trying to live in both worlds. Why people don't participate
is again the same question. मैं क्यों करूं? उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, let them know that there are rewards associated with it. तो मैं जब इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स करता हूं, आई विल इंश्योर दैट मेरे प्रोजेक्ट में पिक्चर्स सारे टीम मेंबर्स के हों जिन्होंने मुझे मेरे प्रोजेक्ट में हेल्प किया है. These very simplistic change management principles will be very helpful. उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए. So give them their due. Make a lot of noise about people who are helping you. People don't participate because bandwidth का इशू है. अच्छा प्रोजेक्ट प्लान बनाइए. Let it be approved by leaders, where you are making it amply clear कि मुझे 2-3-4 दिन के लिए ये पर्सन लोन पे चाहिए. And make life easy. Uncomplicate करना is a good way of doing projects. Lot of time what you try while you need people, आपने उनके पार्टिसिपेशन को इतना मुश्किल बना दिया है कि वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं. Explain to them in easy lingo. Uncomplicate. I will do a storyboard on handling change management challenges. Please reach out अगर आपके कोई specific questions हो that you would want me to answer, and I will be more than happy to help. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाले वीडियोस में मैं चेंज मैनेजमेंट एसोसिएटेड विद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत एग्जॉस्टिवली कवर करूंगा. सो प्लीज लुक फॉरवर्ड टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चेंज मैनेजमेंट वीडियोस. आई होप दिस वीडियो सीरीज इज हेल्पफुल. थैंक यू. बाय.